Good morning, everybody. Onkar, Aditya, Chetan, Nitya, Manali, Govind. Very good morning. Raj, Rutraj, Diya, Gauri. Very good morning, friends. We're on the chapter in ledger posting. In the previous lecture, we discussed point number 1 that various transactions given to you, and on that basis you have to do ledger posting. We also understood what is the importance of ledger, because when we are doing journal entries, if you record only journal entries, then only passing journal entry will not serve any purpose. If at all you have to identify any balance of any your customer of your any supplier, or whatever the total expenses you paid, then you cannot search in all your journal entries and to identify each and every transaction where it is debit or credit. It's not possible. So journals advanced version is required, and that is what your ledger posting. Under the ledger, for every account you will have a separate ledger, and in that ledger one account will be debited and one account will be credited. So how it is we already discussed. Now let's come to point number 2, and as I already said, you must have prepared your at least 2 formats, because in today's session we are going to discuss at least 2 problems on this ledger. So let's come. Diksha, Vidya, Ronak, Niral, very good morning. चलिए बच्चों. Vishal, Anshika, good morning. Point number 2. From the following information, pass journal entries and prepare necessary ledger account. Also prepare trial balance. The question says from the following information, pass journal entries. Now this journal entries हम लोग मन ही मन में पास कर लेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है. And prepare necessary ledger account. Also prepare trial balance. Okay. So you must have been ready with your formats. ये आपका ledger का format. So ledger gets split into the 2 parts. 2 side होती है, one is a debit and one is a credit. So here for each ledger it's a DRCR, debit recorded and credit recorded for each ledger. On both sides there are 4 column, date particulars, JF amount, date particulars, JF amount. But here I not prepared any JF column. आप एग्जाम के बाद इसको बना लेना, ठीक है, क्योंकि अभी हम उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. JF का कॉलम हमें क्यों लगता है वो आज हम इस प्रॉब्लम के बाद हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है. तो चलिए. So let's this DRCR let's come to here. From the following information, pass necessary journal entries and prepare necessary ledger account. Also prepare trial balance. Date February 1st, transaction. Mr. Bhushan commenced business with cash rupees 2 lakh. Mr. Bhushan commenced business. इसका मतलब we are doing accounting in the books of Bhushan. So सबसे पहले it is in the books of Bhushan account. In the books of Bhushan. In the books of Bhushan. The first transaction is Bhushan commenced business with cash rupees 2 lakh. So Bhushan commenced business with cash. So entry हो जाएगी इसकी cash account debit to capital. The entry is cash account debit to capital. So February 1st amount rupees 2 lakh. So let's have 2 ledger. The first one is cash account. Second one is a capital account. Cash account debit to capital. So here on the cash को debit, entry हमारी cash account debit to capital. So cash को debit, हमारी entry थी cash account debit to
capital account 2 lakh. This was our entry. So it's a cash account debit to capital. So cash को debit to capital. So entry लिखते हैं तो आप लिखेंगे cash को debit to capital account 2 lakh. Cash को debit to capital. Capital को credit February 3rd by cash account 2 lakh. Cash account debit to capital. Yes, Raj, बिल्कुल correct. Next. आप लोग भी अगर आगे बढ़ना चाहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं. सिर्फ 2-3 ट्रांजैक्शंस मत करना, जैसे कि दिस एक नंबर 12 का, देन एक नंबर 24, एक नंबर 26 एंड नंबर 10. ठीक है. सो आप लोगों अगर खुद एंट्री करके अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. बस 10, 12, 24 और 26 ये ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ. ठीक है, इसलिए मैं इसको पेंडिंग रखा, बाकी कुछ भी नहीं है. बाकी आप बेशक आगे बढ़िए, नो प्रॉब्लम. Goods purchase for cash 45,000. So it's a purchases account debit to cash. So I have one more account in the name of purchases. So 3 तारीख purchases account तारीख, अच्छा ये पहली तारीख एक थी, purchases account debit to cash account. Amount is rupees 45,000. Cash को credit by purchases. $45,000. Next transaction. गुड सोल्ड टू मनोज 35,000. हमने मनोज को सेल किया. इट्स मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सो 4 तारीख को मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे यहाँ पर. मनोज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. 4 तारीख 35,000 मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स. February 4 मनोज को डेबिट टू सेल्स अकाउंट 35,000. सेल्स को क्रेडिट बाय मनोज अकाउंट 35,000. बाय मनोज अकाउंट 35,000. नेक्स्ट. गुड्स परचेज फ्रॉम संतोष रुपीज 80,000. हमने संतोष से परचेज किया, एंट्री हो गई परचेसेस अकाउंट डेबिट टू संतोष अकाउंट. तो एक संतोष का अकाउंट हमको करना पड़ेगा. 5 तारीख संतोष का अकाउंट करना पड़ेगा. सो February 5 परचेसेस अकाउंट डेबिट टू संतोष. अमाउंट इज 80,000. परचेज को डेबिट February 5. February फिर से लिखने की जरूरत नहीं आपको यहाँ पर. टू संतोष अकाउंट. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू संतोष अकाउंट 80,000. सो परचेस को डेबिट, क्रेडिट वाले का नाम टू संतोष, संतोष को क्रेडिट बाय परचेसेस. संतोष को क्रेडिट बाय परचेसेस अकाउंट 80,000. Got it? Next.
कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 40,000, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 40,000 7 तारीख को. सो इट्स अ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. तो एक बैंक अकाउंट करना पड़ेगा आपको. सो 7 तारीख को 40,000. हैव वन मोर अकाउंट, बैंक अकाउंट. So here बैंक को डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट 40,000. Now it's only practice. इसमें नया ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले, बता दे, नहीं समझा तो. ठीक है. The next check of is 25,000 received from मनोज. मनोज से 25,000 हमें आए. मनोज से 25,000 हमें मिल गए. सो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज. कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज. आई थिंक हमारे पास मनोज का अकाउंट भी है, कैश का भी तो है ही पहले से. सो 8 तारीख को कितने आए? 25,000 रुपये. सो कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज. कैश को डेबिट टू मनोज अकाउंट 25,000. मनोज को क्रेडिट आठ तारीख बाय कैश अकाउंट 25,000. कैश को डेबिट टू मनोज. चेक आया है क्या? अरे मैं तभी तो बोले यार, चेक आया है ना, कैश में कैसे आएगा? बच्चे कुछ भी बोलते. सो चेक कैसे? चेक है सर, तो बैंक आएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मनोज आएगा, तो ये तो बैंक को डेबिट आएगा. सर ऐसे कैसे हो सकता है? कैश को थोड़ी ना आएगा, बैंक को आएगा डेबिट. 8 तारीख बैंक को डेबिट टू मनोज अकाउंट 25,000. बैंक को डेबिट टू मनोज, मनोज को क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट. मुझे मालूम था, मैं जैसे देख रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं करके. ठीक है, चलो ओके, वेल डन. अच्छे ध्यान रखिए. अच्छा हो गया, बोल दिया. नेक्स्ट, गुड सोल्ड फॉर कैश रुपीज 15,000 एंड बाय चेक रुपीज 5,000. कंबाइन करना था जरा मुझे उसको. गुड सोल्ड फॉर कैश 15,000 एंड बाय चेक 5,000. तो हमने एक गुड सेल किए और हमें कैश में मिले 15,000 रुपये और चेक से मिले 5,000 रुपये. अब इसकी एंट्री क्या होगी हमारी? सबसे पहले हमारी इसकी एंट्री हो जाएगी बेटा, हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट. हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 15,000 क्योंकि हमें कैश मिली. बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000. कैश अकाउंट डेबिट 15,000, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000. अब इसमें क्या है ना, 2 डेबिट है और 1 क्रेडिट है. अब इसका पोस्टिंग कैसे होगा? कुछ नहीं है सर, कैश को डेबिट करना है 15,000 रुपये, बैंक को डेबिट करना है 5,000 रुपये, और इन दोनों को डेबिट आएगा टू सेल्स, और सेल्स को क्रेडिट आएगा बाय कैश बाय बैंक. देखिए कैसे करना. सो कैश को डेबिट, तारीख क्या थी सर? तारीख है 10. सो हम पोस्टिंग करेंगे कैश को डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो कैश को कितना डेबिट करना हमको? 15,000 से. सो कैश को 15,000 से, बैंक को 5,000 से. सो कैश को डेबिट टू सेल्स 15,000, बैंक को डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000. कैश को डेबिट टू सेल्स, बैंक को डेबिट टू सेल्स. सेल्स को 2 क्रेडिट आएंगे इस बार. सेल्स को 10 तारीख बाय कैश अकाउंट 15,000 एंड बाय बैंक अकाउंट 5,000. भाई बताइए क्या ये समझ में आ गया सबको? इस एंट्री का पोस्टिंग समझ में आ गया आपको? 2 डेबिट और 1 क्रेडिट वाला. बताइए सर, किसी को कोई डाउट? अनुष्का, ओंकार, दिया, सृष्टि, गौरी, रौनक,
गोविंद, अर्जुन, ऋतुराज, प्राजक्ता, पीयूष, प्रचिति, मनाली, मीत, विद्या, नित्या, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई कम से कम जिनका सॉल्व हो गया वो ना बताए, लेकिन जिनको नहीं समझा वो तो बता दो, नॉट अंडरस्टूड करके, सो आई कैन एक्सप्लेन अगेन। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बताऊं और आप समझ ना पाए सर, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। जगास, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 10 हो गया। मीत ने पूछा सर बाय बैंक के वहां पे डेट नहीं डालनी क्या? तुम्हारा मन करता है तो डाल दो, क्योंकि वैसे भी एक ही तारीख आता है, ये 10 लिखा है यहाँ पर बाय कैश, तुम्हारा मन है तो डाल दो, क्योंकि अगर ऊपर की डेट उसको कंटिन्यू हो जाती मीत, कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलो ग्यारह तारीख, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 20,000, हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, सो इट्स अ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश को डेबिट 11 तारीख, कैश को डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 और बैंक को क्रेडिट बाय कैश 11 तारीख बाय कैश अकाउंट 20,000। नेक्स्ट, पेड टू संतोष बाय कैश 5,000 and check ₹3,000। थोड़ा करेक्शन किया उसके अंदर, पेड टू संतोष बाय कैश 5,000 एंड चेक 3,000। हमने संतोष को पेड किया, कैश और चेक दो चीज़ें हमने दी है, तो हमारी इसकी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी, हमने संतोष को दिया, सो संतोष अकाउंट डेबिट टू, हमने उसे कैश दी, सो टू कैश अकाउंट 5,000 एंड टू चेक हमने उसको दिया, सो इन दैट केस बैंक इज अ गिवर टू बैंक अकाउंट 3,000, सो संतोष को डेबिट इज 8,000। संतोष अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट 5,000 टू बैंक अकाउंट 3,000। सो संतोष को डेबिट टू कैश टू बैंक एंड कैश एंड बैंक को क्रेडिट बाय संतोष। ठीक है, आप लोग पोस्टिंग कर ले, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। संतोष को डेबिट करना 2 जन, टू कैश टू बैंक एंड कैश एंड बैंक को क्रेडिट बाय संतोष बाय संतोष। ठीक है, संतोष को डेबिट टू कैश टू बैंक, तारीख है इसकी 12 संतोष, हाँ संतोष को टू कैश अकाउंट 5,000 टू बैंक अकाउंट 3,000। मीत के लिए यहाँ पर तारीख लगा दे 12, टू कैश टू बैंक। अभी कैश टू कैश टू बैंक, संतोष को डेबिट टू कैश, कैश को क्रेडिट 12 तारीख बाय संतोष अकाउंट 5,000 और बैंक को क्रेडिट 12 तारीख बाय संतोष अकाउंट 3,000। Have you all understood this? पक्का? जगास, गुड, यस। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। Goods sold and amount received by check 40,000. Goods sold and amount received by check. So it's a bank account debit to sales. So 15 तारीख बैंक को डेबिट टू सेल्स, बैंक को डेबिट टू सेल्स आंकड़ा है 40,000 रुपये। 15 तारीख बैंक को डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000, सेल्स को क्रेडिट 15 तारीख बाय बैंक अकाउंट 40,000। देन पेड टू संतोष बाय चेक 35,000, हमने संतोष को चेक दिया, संतोष अकाउंट डेबिट टू बैंक 35,000। 16 तारीख
संतोष अकाउंट डेबिट टू बैंक, संतोष को हमने चेक दिया, संतोष इज अ रिसीवर, संतोष को डेबिट बैंक से दिया मतलब बैंक पेमेंट करेगी, बैंक इज अ गिवर। संतोष को डेबिट टू बैंक, बैंक को क्रेडिट बाय संतोष अकाउंट, बाय संतोष अकाउंट 35,000। 18 गुड्स परचेस एंड पेमेंट मेड बाय चेक 10,000, गुड्स परचेस्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक, हमने परचेस किया और अमाउंट हमने चेक से दी, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 18 तारीख 10,000, 18 तारीख परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 और बैंक को क्रेडिट बाय परचेसेस अकाउंट 10,000, परचेस को डेबिट टू बैंक, बैंक को क्रेडिट बाय परचेसेस। देन गुड्स सोल्ड टू संतोष रुपीज 10,000, संतोष को हमने गुड्स सेल किए, एंट्री संतोष अकाउंट डेबिट टू सेल। देखो मैंने यहाँ पर एंट्रीज बहुत सिंपल रखी है, ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल रखे है। मैं नहीं चाहता कि हम लोग जर्नल एंट्री के जगलरी में उलझ जाए, हम चाहते हैं कि लेजर सीखे, तो ट्रांजैक्शन सिंपल है। और कोई भी एंट्री रहना सर, एक बार आपको कोई भी एंट्री अगर आपने करी तो उसका लेजर पोस्टिंग करना ही करना बहुत सिंपल है, ठीक है। सो गुड्स सोल्ड टू संतोष, संतोष अकाउंट डेबिट टू सेल्स 19 तारीख, संतोष को डेबिट टू सेल्स, संतोष अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000, संतोष को डेबिट टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट 19 तारीख बाय संतोष अकाउंट 10,000, बाय संतोष अकाउंट 10,000। गुड्स परचेस फ्रॉम मनोज 25,000, मनोज से हमने परचेस किया, मनोज से परचेस किया, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मनोज 20 तारीख को परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मनोज, अमाउंट कितनी है 25,000, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, मनोज को क्रेडिट बाय परचेसेस 25,000। Buys goods sold for cash 20,000, goods sold for cash 20,000, it's a cash account debit to sales 20,000, so cash को debit to sales, buys को cash को debit to sales account 20,000, sales को credit, sales को credit by cash account 20,000. Then received from Milind rupees 15,000 in cash and check rupees 2,000. 24 को मैंने थोड़ा सा ऐड करके लिया उसके अंदर, received from Milind rupees 15,000 in cash and check 2,000, 15,000 कैश में और 2,000 रुपये चेक में, तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, हमें कैश आई 15,000 रुपये, सो कैश अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये, हमें चेक आया 2,000 का, सो बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये, टू मनोज अकाउंट, नहीं मनोज नहीं इस बार मिलिंद है, मिलिंद है, टू मिलिंद अकाउंट, सो कैश अकाउंट को डेबिट, बैंक को डेबिट टू मिलिंद अकाउंट, ठीक है। सो कैश एंड बैंक को डेबिट आएगा टू मिलिंद और मिलिंद को आएगा क्रेडिट, और आई थिंक इस बार मिलिंद का अकाउंट नहीं है हमारे पास, शायद से मिलिंद का अकाउंट नहीं है, तो मिलिंद का अकाउंट बनाया जाएगा। सो लेट्स हैव वन मोर अकाउंट दिस फॉर मिलिंद, ये अकाउंट मिलिंद के नाम पर सर। सो एंट्री थी हमारी कैश को डेबिट 15,000, बैंक को डेबिट टू मिलिंद 2,000,
और मिलिंद को आएंगे 2 क्रेडिट बाय कैश बाय बैंक। तारीख है 24। सो कैश को डेबिट टू मिलिंद अकाउंट 15,000 रुपये, टू बैंक अकाउंट 2,000। और अरे यार यहाँ थोड़ी ना आएगा ये। कैश को डेबिट टू मिलिंद, उसके बाद बैंक को डेबिट टू मिलिंद, बैंक को डेबिट टू मिलिंद, $2,000 एंड मिलिंद को क्रेडिट 24 तारीख बाय कैश अकाउंट 15,000 and by bank account 2,000. Next, चेक ऑफ रुपीज 20,000 इशूड टू मनोज। हमने मनोज को चेक दिया, मनोज को हमने चेक दिया। मनोज अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000, 25 तारीख मनोज को डेबिट टू बैंक मनोज को डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000, मनोज को डेबिट टू बैंक, बैंक को क्रेडिट बाय मनोज। $25,000। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000, बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट किए। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000, 26 तारीख बैंक को डेबिट टू कैश 15,000, कैश को क्रेडिट बाय बैंक 15,000। देन 26 तारीख गुड्स परचेस एंड पेमेंट मेड बाय चेक 5,000 एंड कैश 4,000 एंड कैश 4,000। सो हमने गुड्स परचेस किए और पेमेंट बाय चेक 5,000 एंड कैश 4,000। सो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? इट्स अ परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। सो कितना किया आपने? चेक से 5,000, कैश से 4। सो ये बैंक को 5,000, कैश को 4,000, परचेस को डेबिट 9,000। सो एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। सो परचेस को 2 डेबिट आएगा, टू कैश टू बैंक एंड कैश एंड बैंक हो जाएगा क्रेडिट बाय परचेस बाय परचेस। सो परचेस को डेबिट टू कैश तारीख 26, टू कैश अकाउंट 4,000, 26 को टू बैंक अकाउंट 5,000। सो कैश एंड बैंक को क्रेडिट 26, कैश को क्रेडिट बाय परचेसेस 4,000, बैंक को क्रेडिट 26 तारीख बाय परचेसेस 5,000। देन भैया एंट्री समझ में आ गई सबको? एक डेबिट एक क्रेडिट या फिर 2 डेबिट 1 क्रेडिट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल वन। तो मैंने इस बार वो 4 ट्रांजैक्शन ये स्टार वाले ना, ये मैंने इस तरह से करवा के लिए इस बार। हालांकि मैं 4th या 5th प्रॉब्लम्स को लाता हूँ, बट क्योंकि आप बच्चे समझदार है, अच्छे बच्चे सारे, ठीक है ना, सीए कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि स्टार्टिंग से ही जरा थोड़ा सा डोज दे दे सर, क्या फ़र्क पड़ता है।
ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फॉर कैश 15,000, गुड्स परचेज फॉर कैश 15,000, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 27 को। टू कैश 15,000, कैश को क्रेडिट, बाय परचेसेस 5,000, 15,000 एंड 27 लास्ट। कैश पेड टू मनोज 10,000, मनोज को हमने 10,000 रुपये दिए, सो मनोज अकाउंट डेबिट टू कैश, मनोज को डेबिट टू कैश 27 तारीख। मनोज को डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, कैश को क्रेडिट बाय मनोज अकाउंट 10,000। चलिए पूरा पोस्टिंग हमारा खत्म हो गया। अब सभी बच्चे एक बार चेक कर ले, हर एक अकाउंट को एक बार देख लें कि जो कुछ भी मैंने डेबिट क्रेडिट लिखा है क्या सब कुछ सेम है, क्या आपका मेरा सेम है क्या, कहीं हो सकता है मुझसे गलती हुई होगी, शायद आपसे कुछ रहा होगा, तो प्लीज एक बार चेक कर ले। प्लीज चेक योर कैश का डेबिट, कैश का क्रेडिट, एवरीवन प्लीज चेक इट। कैपिटल अकाउंट देयर इज ओनली क्रेडिट, परचेसेस क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो इसको सिर्फ और सिर्फ डेबिट ही आएगा हमेशा, परचेसेस। देन योर मनोज अकाउंट आप एक बार देख लें, चेक योर डेबिट एंड क्रेडिट। सेल्स, सेल्स हमारा इनकम है, बीइंग ए इनकम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेल्स हमारा इनकम है, उसको हमेशा क्रेडिट ही आएगा, सो सेल्स को सिर्फ क्रेडिट आया। संतोष डेबिट क्रेडिट दोनों है सर। बैंक अकाउंट प्लीज चेक, प्लीज चेक कहीं कुछ छूट ना जाए सर। मिलिंद अकाउंट और एक फॉर्मेट हमारा वेस्ट गया। अच्छा वेस्ट नहीं करना है आपको सच्ची, तो फिर एक काम करते सर, एक ट्रांजैक्शन में ऐड कर देता हूं, एक ट्रांजैक्शन में ऐड कर देता हूं 27 तारीख को। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस 10,000, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस रुपीज 10,000। ये मैंने एक्स्ट्रा शानपन आप भी किया सर 27 तारीख की, एक ट्रांजैक्शन और लगा दिया मैंने। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस 10,000, एक एंट्री हमने और बढ़ा दी, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस सर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, ड्रॉइंग्स को डेबिट टू परचेसेस, ड्रॉइंग्स को डेबिट टू परचेसेस। तो एक अकाउंट करना पड़ेगा सर ड्रॉइंग्स का, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस है, सो ड्रॉइंग्स को डेबिट 27 तारीख टू परचेसेस अकाउंट 10,000, ड्रॉइंग्स को डेबिट टू परचेसेस, परचेसेस को क्रेडिट बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। यही तो मिताली, यही तो मैं चाहता था कि आपने इतनी मेहनत से एक अकाउंट किया हुआ है वो वेस्ट न जाए, फिर मैंने एंट्री लगा दी वहाँ पर। गौरी बिल्कुल करेक्ट, ड्राइंग्स टू परचेसेस बिल्कुल करेक्ट, पोस्टिंग हो गया। चलिए अभी क्या करना है? बैलेंसिंग। तो लीजिए सर, बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना है? कैश से शुरुआत करते हैं। दोनों साइड के टोटल्स देखना कितनी आती है, टोटल लिखना नहीं, मनी मन में देखो सर कितनी टोटल आती है, और जो टोटल ज़्यादा आएगी पहले वो लिखी जाएगी और वही अपोजिट साइड में लिखी जाएगी सेम लाइन पर। सो अगर आप देखें तो कैश बुक में पहला आंकड़ा 2 लाख है डेबिट में, तो डेबिट तो काफ़ी है सर, 2,70,000 है डेबिट। क्रेडिट तो काफ़ी शॉर्ट है, सो मतलब डेबिट ज़्यादा है। सो लिखिए सर डेबिट की टोटल
डेबिट की टोटल 2,70,000 रुपये, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है तो वहीं आपको सेम लाइन पर क्रेडिट में लिखना है 2,70,000। वो लिखने के बाद क्रेडिट का जितना टोटल है वो आपको 2,70,000 में से माइनस करना है। सो क्रेडिट का टोटल है 45 + 40 85, 90 और 15 1,05,000, 1,05,000, 1,09,000, 1,24,000, 1,34,000, 1,34,000। ये क्रेडिट का जो टोटल है ये आता है 1,34,000। ये आपको ऐसा लिखना नहीं एग्जाम में, ये सिर्फ मन में रखना आपके। सो 2,70,000 में से 1,34,000 लेस करेंगे तो बैलेंस बचेगा आपका 1,36,000। इट कम्स टू 1,36,000। एम आई करेक्ट? यस, 1,36,000 बैलेंस बचेगा। और फरवरी की आखिरी तारीख 28, क्योंकि हम लोग फरवरी महीने का अकाउंटिंग करें तो फरवरी की आखिरी तारीख को बाय बैलेंस कैरिड डाउन C/D, और जिस साइड में कैरिड डाउन लिखा उसके अपोजिट में टोटल के नीचे अगले महीने की पहली तारीख। सो जो 28 फरवरी का क्लोजिंग है वो मेरा 1 मार्च का ओपनिंग हो जाएगा। सो अपोजिट में लिखेंगे अब यहाँ पर March 1 to balance brought down 1,36,000। to balance brought down 1,36,000। स्टेप्स हमने क्या क्या लिए बेटा, एक बार फिर से बता दूं। हमने पहले डेबिट क्रेडिट की दोनों की टोटल मनी वन में की, डेबिट की टोटल ज़्यादा थी। सो पहला काम हमने किया, हमने पहले आंकड़ा डेबिट में लिखा। पहले हमने डेबिट में लिखा नंबर 1, टोटल लिखी, ऊपर एक नीचे 2 अंडरलाइन, कभी ना भूलना। वही टोटल हमने क्रेडिट में लिखी 2,70,000। फिर हमने कैश की क्रेडिट की जो टोटल है 1,34,000, ये हमने 2,70,000 से माइनस करके ये हमने बैलेंस लिखा 1,36,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। महीने की आखिरी तारीख को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जिस साइड में कैरिड डाउन उसके अपोजिट में अगले महीने की पहली तारीख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये इसकी स्टेप्स है 1 2 3 4 5 एंड सेम यू हैव टू फॉलो फॉर ऑल दी अकाउंट्स। सी कैपिटल, अब कैपिटल में सिर्फ क्रेडिट ही है सर। सो लिख दो पहले क्रेडिट की टोटल 2 लाख, टेक इट ऑन द डेबिट साइड सेम लाइन पर 2 लाख। अभी कैपिटल का जो डेबिट है 0 है सर, 2 लाख माइनस 0 इज 2 लाख रुपए। फरवरी महीने की आखिरी तारीख, सो फरवरी 28 को टू बैलेंस कैरिड डाउन, और जिस साइड में कैरिड डाउन उसके अपोजिट में टोटल के नीचे अगले महीने की पहली तारीख। सो क्रेडिट साइड में March 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। आई गेस बिल्कुल क्लियरिटी आ रही है सबको। चलिए परचेसेस, डेबिट ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। सो डू डेबिट का टोटल 45 + 80 125, 125, 150, 160, 169, 1,84,000। प्लीज चेक, इज इट डेबिट 1,84,000। सो पहला स्टेप डेबिट की टोटल, दूसरी स्टेप सेम लाइन क्रेडिट पे लिख दिया। फिर आप क्रेडिट की टोटल करेंगे जो कि 10,000 ही है, वो माइनस करके आप लिखेंगे बैलेंस। सो फरवरी 28 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,84,000 माइनस 10 1,74,000, ये आपने लिखा बैलेंस, और जिस साइड में कैरिड डाउन उसके अपोजिट में टोटल के नीचे अगले महीने की पहली तारीख। सो हियर March 1 to balance brought down 1,74,000, 1,74,000। Got it? चलिए मनोज, इसका डेबिट है 70,000 और क्रेडिट 50, तो डेबिट ज़्यादा है 70,000 डेबिट। टेक इट ऑन द क्रेडिट साइड सेम लाइन पर, ऊपर एक नीचे 2 अंडरलाइन। 70 में से ये 50 गए, द डिफरेंस इज 20,000। सो ईयर आखिरी तारीख 28 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20,000 एंड March 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000।
भाई रोहित 1,25,000 किसका है रे? आर यू ऑन सेल्स? शायद से वो आगे चला गया है हमारा रोहित, राइट। सो 35, 15, 50, 55, 95, 1,05,000, 1,25,000। क्रेडिट, टेक इट ऑन द डेबिट साइड 1,25,000। फिर डेबिट में जो भी है वो माइनस कर दो, कुछ है ही नहीं वहां पर सर। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,25,000, और जिस साइड में कैरिड डाउन उसके अपोजिट में टोटल की नीचे अगले महीने की पहली तारीख March 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000। देन संतोष का 35, 40 और क्रेडिट ज़्यादा है सर। क्रेडिट में एक ही आंकड़ा है लेकिन सब पे भारी है। 80,000, 80,000। सो 40, 50, 53। कितना है बैलेंस बेटे इस बार बताइए? बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। मैं एक बात बताऊं आपको, जितना कैरिड डाउन उतना से ब्रॉट डाउन आता वाला। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या पीछे मारते हो सर बैठे बैठे। बाय बैलेंस इज इट 27,000? यस रोहित, मुझे एक्सपेक्टेड था कि तू आंसर देगा बेटा। 27,000, दिस इज 27,000। शाबाश, 27,000। बैंक डेबिट में काफ़ी बड़े बड़े आंकड़े दिख रहे हैं। 40, 40, 1, 20, 30, 1, 30, लगभग 1.5 लाख है। और तो डेबिट ही ज़्यादा है सर, डेबिट ही ज़्यादा है। तो डेबिट आपका सर 40, 40, 80 और 30, 1, 10, 1, 10 और 17, 1,27,000। और ये 1,27,000। सो February 28 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो 20 और 3, 23 और 35, 58, 68, 73, 98, 98, 27। इज इट 29,000? यस प्रचिति बिल्कुल करेक्ट। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 29,000, और फिर अगले महीने की पहली तारीख अपोजिट साइड में टोटल की नीचे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,000। मिलिंद की केस में उसका क्रेडिट ही ज़्यादा है, राधा उसको सिर्फ क्रेडिट ही तो है। 17,000, 17,000। सो February 28 टू बैलेंस कैरिड डाउन 17,000। जिस साइड में कैरी डाउन उसके अपोजिट में टोटल के नीचे पहली तारीख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000। ड्राइंग्स की टोटल मैं बताऊंगा आपको 10,000 रुपये ना। कुछ तो कंट्रीब्यूशन मेरा भी होना चाहिए आपको, कुछ तो कंट्रीब्यूशन मैंने भी करना चाहिए। सारे जवाब बच्चे दिए ठीक नहीं सर। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। जिस साइड में कैरिड डाउन उसके अपोजिट में टोटल के नीचे अगले महीने की पहली तारीख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 हो गया सर। ठीक है, सो ध्यान रखिए एक बार आपने बैलेंसिंग कर लिया, इसके बाद अगली स्टेप होती है इसका ट्रायल बैलेंस। इट इज ए ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस समरी ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस बनाइए। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 28 Feb। 1 मार्च लिखिए तो भी गलत नहीं है आपका। सो आपके सारे अकाउंट के नाम लिख दें सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। जो अकाउंट है सर
हर अकाउंट का कोई ना कोई बैलेंस है, आइदर डेबिट और क्रेडिट। सो कैश का बैलेंस जिस साइड में ब्रॉट डाउन वो बैलेंस होता है। अभी जिस साइड में ब्रॉट डाउन, सो ये आपका कैश का डेबिट में ब्रॉट डाउन है। ओहो ओहो सर ये क्या हो गया? तो ये डेबिट में ब्रॉट डाउन है 1,36,000। इट मीन्स कैश इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस 1,36,000। सो इन योर ट्रायल बैलेंस 1,36,000 ऊपर रुपीज, ठीक है। कैश के बाद कैपिटल अकाउंट, उसे आपका क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख रुपए। जिस साइड में ब्रॉट डाउन वो बैलेंस होता है उस कॉलम में लिख देने का, बैलेंस या तो डेबिट या तो क्रेडिट। उसके बाद है आपका परचेसेस अकाउंट और उसे डेबिट है 1,74,000 टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यस 1,74,000 एंड दैट इज टू डेबिट बैलेंस। परचेसेस 1,74,000। उसके बाद है मनोज डेबिट बैलेंस 20,000। हर एक का नाम लिखो और उसका बैलेंस लिखो। सेल्स को क्रेडिट है 1,25,000। सेल्स को क्रेडिट 1,25,000। संतोष को क्रेडिट 27,000 रुपये। संतोष बैंक डेबिट 29,000। मिलिंद क्रेडिट 17,000। एंड ड्राइंग्स डेबिट 10,000। और 9 ही अकाउंट है आपके। ये रहा आपका समरी शीट। सो ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट समरी ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस। तो जितने भी लेजर है सर सबको या तो डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट है, उन सबके नाम लिख दिए, उसके आगे उसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। और इसके बाद क्या करना सर, इस बार इसके बाद दिल से एक बार मेरा नाम लेना और टोटल करने की। And your trial balance must tally. Oh, Prachiti, 3,69,000. मेरा नाम लेके टोटल करेंगे बेटा, बिल्कुल टैली हो जाएगा। ओम संदीपाय नमः, देखो टैली हो गया। विशाल विद्या 369, so 10 and 29, 39, 59, 59, 174, 233 and 116 now. Yes, 369. डेबिट 2,03,25, 3,52 और 369, 3,69,000। सर ये आपका टैलीज होना चाहिए, गॉट इट। और अगर आपने प्रॉपर डेबिट और प्रॉपर क्रेडिट अगर आपने किया है तो हर हाल में आपका ट्रायल बैलेंस टैली जरूर होगा, ठीक है। देयर इज नो रीजन व्हाई इट विल नॉट टैली। पक्का कंफर्म टैली होगा मतलब होगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अगर आपसे कहीं पर भी अगर छोटी सी भी चूक हो गई कि भाई किसी का डेबिट लिख दिया लेकिन क्रेडिट लिखना रह गया, या फिर क्रेडिट लिखा लेकिन डेबिट लिखना रह गया, या फिर दोनों तरफ लिखा लेकिन आंकड़ा गलत लिख दिया, तो गड़बड़ हो सकती है। फिर आपका ट्रायल बैलेंस पीटेगा, फिर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। इट मीन्स यू आर डूइंग दिस एरर। आप समझे मेरी बात को? अगर आपसे छोटी सी भी चूक हो जाए ना, अब हमने लगभग समझो 15 ट्रांजैक्शन थे हमारे, 15 ट्रांजैक्शन के 30 इफेक्ट है। 30 में से अगर आपका एक भी इफेक्ट अगर गलत हो गया तो अल्टीमेटली योर ट्रायल बैलेंस विल पीटेगा सर, आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। सो इस तरह की एरर हो सकती कि नहीं हो सकती बेटा, आप बताइए। क्या इस तरह की गलती होगी, हो सकती कि नहीं हो सकती? इंसान है बेटा, ऐसे ही गलती हो सकती कि नहीं हो सकती? यस और नो? बिल्कुल हो सकती है। ओंकार, रुद्राज, गौरी, तनिषा, गोविंद,
सृष्टि, प्रियल, सारे मेरी बात से सहमत है। रौनक, नित्या, ईश्वर, सारे बच्चे कह रहे हाँ सर इस तरह की गलती होना स्वाभाविक है। एक बात बता दूं, अगर इस तरह की गलती हो जाए then how it is to be rectified is also one more chapter, rectification of error। अब आपने कोई मान लो कोई गलती कर दी, तो जो आपने एरर कर दी that is unintentional error, एरर करने का आपका कोई मकसद नहीं था सर, but innocent person sir, it was just happen, एरर हो गई, then how to rectify that error is also one more chapter in your syllabus, that is the rectification of error, जिसको आगे जब समय के साथ आएगा तब हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे। Got it? तो चलिए बेटा, इसी के साथ में हमारे प्रॉब्लम नंबर 2 खत्म हो गया। और अब हम बात करते हैं एक मुद्दे की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मेट्स मैंने आपको दिखाए थे। हाँ, तो एक मिनट, एक मिनट का समय देंगे आप मुझको सिर्फ। अरे हाँ, हो तो रहा है। हाँ, देखिए हमारा जो एक्चुअल जो फॉर्मेट होता है, इट्स डेट पर्टिकुलर्स JF, डेट पर्टिकुलर्स JF। थोड़ी सी आपको क्लियरिटी आ जाए उसके लिए मैं आपको JF के कॉलम में एक्सप्लेन करता हूँ। Now let's say हम लोग जब ये सारे जर्नल एंट्रीज और लेजर जब बनाते हैं तो बेसिकली 2 रजिस्टर्स होते हैं अलग अलग। जर्नल आपकी एक पेज, एक नोटबुक होगी सर, जिसके अंदर के पन्ने होंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं सर, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं सर, ये एक पेज है। ये क्या है? एक पेज है, ठीक है। ये भी एक पेज है। मैंने छोटे छोटे फॉर्मेट बना दिए सर, मैं ऐसे 200 पेज थोड़ी ना लगा सकता हूँ यहाँ पर। ये एक आपका पेज है, बराबर है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ पेजेस बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ये हमारी नोटबुक होती है, 144 पेज, 196 पेज या फिर 200 प्लस पेज जो भी रहेंगे, इस तरह के पेजेस होते हैं। आप लोग यहाँ पर एंट्री करते हो, आप यहाँ पर एंट्री करते हो। उसके बाद फिर इस एंट्री का जर्नल में लिखने के बाद हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो लेजर मतलब क्या होता है? लेजर मतलब फिर से आपका रजिस्टर ही है। जैसे आपके बुक में रजिस्टर आपने बनाया तो आपने 8-8, 9-9 लाइन के छोटे छोटे लेजर बना दिए। बट रियल लाइफ में क्योंकि साल भर का हम अकाउंटिंग करते हैं तो एक एक लेजर 1-1, 2-2 पेजेस का बनता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जो आपका लेजर है, तो लेजर में एक बुक होता है सर, एक आपका रजिस्टर होता है। उसके अंदर मान लीजिए ये एक पेज है, दिस इज 1 पेज। मान लीजिए सर ये पेज नंबर 15 है, ये पेज नंबर 22 है, ये पेज नंबर 32 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। नाउ लेट्स से हमने एक एंट्री पास की, हमने एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। बेटा एकदम आराम से, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000। ना मान लीजिएगा ये मेरा जर्नल का पेज है, जर्नल का पेज, पेज नंबर 1, ये हटा देता हूं यहां से।
ये पेज नंबर 1 है, लेट्स से ये पेज नंबर मेरा 18 है, ये पेज नंबर मेरा 85 है, ऐसे अलग अलग पेज नंबर है, 1 2 3 4 5 होगा, मैं बीच बीच में से ले रहा हूँ यहाँ पर। ये मेरा पेज नंबर 92 है, ये मेरा पेज नंबर 108 है, ये मेरा पेज नंबर 126 है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पेज नंबर 1 पर मैंने एंट्री पास करा दी यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 5000 एंड 5000, बराबर है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000, उसका नरेशन हम बाद में देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका पोस्टिंग करेंगे। तो मान लीजिए लेजर में ये मेरा कैश अकाउंट है, ये मेरा कैश अकाउंट है, और ये मेरा यहाँ पर सेल्स अकाउंट है, बराबर है। अब हम पोस्टिंग करेंगे, ध्यान देना बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो कैश को डेबिट, तारीख ठीक है जो रहेगी वो रहेगी, कैश को डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 और सेल्स को क्रेडिट बाय कैश अकाउंट 5000। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये हमने जर्नल में एंट्री लिख दी बेटा, ये जर्नल में हमने एंट्री लिख दी, तारीख जो भी रहे हमने एंट्री यहाँ लिख दी, और इस एंट्री का फिर हमने लेजर में किया पोस्टिंग, कैश को डेबिट सेल्स को क्रेडिट। क्या ये सबको समझ में आ गया, एक बार बता दें। देयर इज नो रॉकेट साइंस, हैव यू ऑल अंडरस्टूड। सर यही तो 2 चैप्टर हम लोग पिछले 15-20 दिनों से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या, अब ये कैश में मैंने एंट्री तो यहां पर लिख दी, फिर इसका लेजर मैंने पोस्टिंग किया, लेकिन लेजर के कौन से पेज पर पोस्टिंग हुआ इसका रेफरेंस यहां लिखा जाएगा, क्योंकि यहां से एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहां से लेजर में कौन से पन्ने पर उसका पोस्टिंग किया ये लिखना जरूरी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, कैश अकाउंट या एक LF का कॉलम होता है, लेजर फोलियो, फोलियो मतलब पेज, तो लेजर का कौन सा पन्ना, सो लेजर का सर, लेजर का कैश का पन्ना कौन सा है, पेज नंबर 15, और सेल्स का क्या है 22, इसलिए इसका क्रॉस रेफरेंस यहाँ लिखा जाता है कि भाई कैश अकाउंट लेजर के 15 नंबर पर पोस्ट किया है और सेल्स अकाउंट लेजर के 22 नंबर के पेज पर पोस्ट किया है। रीडिंग हियर, तो जर्नल में से आपने लेजर के कौन से पन्ने पे वो आपने पोस्टिंग किया है उसका पेज नंबर वहां लिखा है। जैसे आपके बुक के इंडेक्स होता है ना, चैप्टर होता है 1 2 3 4 5, अभी तुमको 7 नंबर का चैप्टर चाहिए तो तुम क्या हर पेज ऐसे पलटते बैठेंगे क्या, 7 नंबर कब आता है कब दिया जाता है, तो इंडेक्स में दिया जाता है ना भाई 7 नंबर का चैप्टर 112 नंबर के पेज से, तो तुम जाके सीधा 112 नंबर का पेज खोलेंगे तो चैप्टर नंबर 7 मिल जाएगा। बिल्कुल वही व्यवस्था यहाँ पर है। जर्नल के इस एंट्री का अगर मुझे पोस्टिंग देखना है तो लेजर के कौन से पेज पे देखूं, सो दैट द पेज नंबर। सिमिलरली मेरे सामने एक सवाल ये आता है कि बाद में जब मैं लेजर देखता हूँ, समझो मैं एक लेजर देख रहा हूँ कैश को, अब मुझे देखना है सर ये जो सेल्स है 5000 रुपये, यहाँ जो डेबिट है कैश को डेबिट है टू सेल्स 5000, तो यार ये जर्नल के कौन से पन्ने से यहाँ पर एंट्री आई है, विच पेज नंबर, फ्रॉम विच पेज नंबर दिस एंट्री इज। तो यहाँ मेरे पास क्या चाहिए, जर्नल फोलियो, जर्नल के कौन से पन्ने से यहाँ पर एंट्री आई है, जर्नल का पेज नंबर क्या है, तो जर्नल का पेज नंबर क्या था, इट वॉज पेज नंबर 1। तो क्या किया जाएगा, कैश अकाउंट को यहां लिखा जाएगा भाई जर्नल के 1 नंबर के पेज से ये हमने एंट्री उठाई है, और सेल्स को भी यहां लिखा जाएगा पेज नंबर 1, ये वहां से एंट्री यहां पर आई है। तो जर्नल में से एंट्री लेजर में कहां गई है, इसलिए जर्नल के अंदर चाहिए हमको क्या, लेजर फोलियो LF, और लेजर में जर्नल के कौन से पेज से एंट्री आई है, इसलिए हमको चाहिए जर्नल फोलियो। Are you getting my point here? Similarly, एक और करते, मान लीजिए हमने यहाँ पर एंट्री करा दी हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट से 10,000 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसका पोस्टिंग होगा बैंक को डेबिट, सो लेट्स से ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसको डेबिट आ जाएगा टू सेल्स, बैंक को डेबिट आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट 10,000, नो डाउट सेल्स को क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट 10,000। और फिर से वही सर, सेल्स का पेज नंबर 22 है और बैंक का पेज नंबर 32 है, तो क्या किया जाएगा,
जर्नल में हम लोग लिख के रखेंगे यहाँ पर भाई बैंक का डेबिट लेजर में 32 नंबर के पेज पर और सेल्स को 22 नंबर के पेज पर, यहाँ से हमने वहाँ पोस्टिंग करा दिया। और बैंक को डेबिट 32 वहाँ पर अभी जर्नल के कौन सा पेज नंबर है 85, तो बैंक के अकाउंट में लिखा जाएगा ये जो 10,000 आए ये जर्नल के कौन से पन्ने से आए सर 85 नंबर से आए, इसका नंबर यहाँ लिखा जाएगा। और सेल्स को जो यहाँ क्रेडिट लिखा जाएगा बाय बैंक, तो ये जर्नल के कौन से पेज से आया सर 85 से आया। तो जर्नल के अंदर लेजर का पेज नंबर और लेजर के अंदर जर्नल का पेज नंबर ये लिखना पड़ता है ताकि बाद में आपको ढूंढने में आसानी रहे। बताइए क्या सर ये जर्नल और लेजर फोलियो का चक्कर आपको समझ में आ गया? Have you well understood this? पक्का क्लियर हो गया? ठीक है। तो क्या होता है ना, जब हम लोग एग्जाम में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जर्नल या लेजर का पेज नंबर नहीं होता, इसलिए आप उसके अंदर खाली जर्नल का कॉलम बना दें, लेजर का कॉलम कर दें और उसको ब्लैंक छोड़ दें। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत काम में आता है। अभी एकेडमिक्स में हम लोग ऐसे आपके पेज नंबर नहीं देते बैठते आपको, ठीक है। सो एग्जाम के लिए आप सिर्फ कॉलम बना दे और उसको ब्लैंक रखें। कभी भी आप चाहे फाउंडेशन में करें सर, चाहे आप आगे चल के इंटरमीडिएट में करें, चाहे सीए फाइनल तक जाए, कहीं पर भी जाए, जर्नल और लेजर में आपको सिर्फ कॉलम बना के छोड़ना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी क्लास में आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई जब हम लोग लेजर बनाएंगे ना तो आप क्या करो, वो कॉलम ही मत बनाओ। अभी क्यों अपनी जगह वेस्ट करते हो? अभी हमको वैसे उसके अंदर कुछ लिखना नहीं है। हाँ, लेकिन जब एग्जाम में करेंगे तो जर्नल के अंदर LF का कॉलम और LF के अंदर जर्नल फोलियो का कॉलम आपको जरूर करना है, ठीक है। So with this, I'll stop here. We'll continue tomorrow. Thank you so much. Bye bye. भाई किसी को कुछ नहीं समझा तो एक बार फिर से बता दो, so I can explain. गौरी सृष्टि कह रहे सर थैंक यू सो मच, अब हम भी थक गए सर, बाय बाय। इतना सफिशिएंट है आपके लेजर के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।